So, hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. I know it's been very late, like कि बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है, बट अब जो वीडियो आ रहा है तो ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है because I'll be inviting many professional across the pharma field so that they can share their views about various streams that are available in pharma field so that आपको भी career guidance मिल सके. So today with us we have Mr. Pawan Shukla. He is working as a medical writer. So Pawan will introduce himself in depth so that you can get to know him better. So yeah, Pawan, welcome to my channel, and yeah, over to you. Please give a brief introduction about yourself. Thank you so much, Aarti. I think it's been like a decade now. We had a session, and I think it was in 2020 or 21 when we had a session together Exactly. about Yeah. for the GPAD parents. Yes. जी So जी, I'm very happy to see you growing and see the growth of SPB Academy for the students. And definitely it will help, this session will help the students for to choose their career wisely and know what medical writing is. So yeah, so hello folks, I am Pawan Shukla and I'm working as a medical writer as of now since like 2 years now. And I did masters in pharmacology from Bharati Vidyapeeth in 2022. And in 2023, I joined Absor Life Sciences as a medical writer. And since then, I am working as a medical writer. Just before 2 months, I have switched my company and have joined a world biggest organization, which is the clinical research organization. And now I'm affiliated with them. Okay, that's great, Pawan. So you have talked about your educational background too. So, but to be very precise, I would like to tell my subscribers that Pawan and I were in the same college for B Farm. We have done our B Farm from Vadhvani College of Pharmacy, and from thereafter he went to Bharati Vidyapeeth and I went to Naipur. So yeah, that's it. And after that, Pawan, I would like to ask you कि आपने medical writing ही क्यों चुना as a career option? Because there are many options available there in the market. So why medical writing only? Okay, so actually, yeah, it's a short story because even you are aware about it. I got into NIPL for like PhD, and I was like Yeah. having an all India rank of 31 in there also. And then I went there, and then I dropped out because of some family's issue. But ठीक है, no regrets. जो भी हुआ अच्छा ही हुआ. And the thing was कि when I was searching for a job, and मेरे को पता चला कि मेरा जो interest है वो reading में lie करता है. I just love reading. I just love reading scientific documents and literatures and the regulatory guidelines. Then market में क्या चल रहा है ये सब जानने का मेरे को एक क्यूरियोसिटी पहले से ही रहता था. Then the another thing was कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था उस टाइम पे we were used to जो हमारे सीनियर्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते थे कि हाँ अब ये अगर रिसर्च आर्टिकल लिखना है तो उसमें थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने लिख दिया तो कुछ रेफरेंसिंग कर दी. तो उस टाइम पे मेरे को पता चला कि नहीं इवन आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग एज वेल. तो एंड वहां पे ऐसा था कि भारतीय विद्यापीठ में देयर वर सो मेनी ऑफ आवर सीनियर्स जो साइंटिफिक राइटिंग या मेडिकल राइटिंग में जा चुके थे ऑलरेडी. हम्म. एंड उनसे भी पता चला था कि मेडिकल राइटिंग का काफी स्कोप है आगे. तो दैट्स वाई मेरे ये गोल से भी अलाइन हो रहा था और मेरा इंटरेस्ट भी लाई कर रहा था. सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ चांस एंड लेट्स गो फॉर मेडिकल राइटिंग एज अ करियर. Yes, exactly like कि whenever you want to start any career, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि डाउन द लाइन ठीक है मतलब पैकेज तो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली बट अगर लाइक इंटरेस्ट हो तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो उस करियर में और ज्यादा ऊपर के अपने पोस्ट पे जाने की ट्राई कर सकते हो. बट अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों इधर आ गई. तो फिर ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं क्विट करके जो दूसरा इंटरेस्टिंग जॉब है वो देख लूं और वहां पे फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है. सो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी करियर में स्टक फील कर रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा करियर आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड वन लाइक यू कैन कॉल इट एज एन इनिशिएटिव फ्रॉम एसपीबी एकेडमी जहाँ पे हम आपको डायरेक्टली जो मेंटोर्स हैं उनसे कनेक्ट करवाएंगे. फर्स्ट लाइक मैं क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ सो यू कैन हैव अ सेशन विद मी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करके ये देख सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी और आप
आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है। और उसके बाद अगर हम लोग कोई 2-3 करियर पाथ के नाम निकालते हैं, तो फिर हम लोग आपको एक्सपर्ट मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव द कन्वर्सेशन विद देम, और उसके बाद आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ही एक सही करियर में जाओ। ओके, या सो मूविंग फॉरवर्ड, पवन आपने इंटरेस्ट की बात करके बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप दिन के एटलीस्ट 10 से 12 घंटे एक जॉब को देते हो अपने, और उसमें अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहे तो इट्स लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। वी ऑल कैन फील दैट नाउ बिकॉज वी आर इन कॉर्पोरेट्स। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट लाइक कि एग्जैक्टली मेडिकल राइटिंग क्या है। सपोज कि जैसे अगर आप ये समझो कि जब हम लोग बी फार्म में थे, हम लोग कॉलेज में थे, और हमको ये सारी जो हाई फाई टर्म्स है इनके बारे में नहीं पता था। तो अगर हमको जानना है कि पवन भैया आप बताओ कि क्या है एग्जैक्टली मेडिकल राइटिंग, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट को एकदम लाइक बेसिक लैंग्वेज में कि क्या होता है मेडिकल राइटिंग। सो या प्लीज लेट अस नो अबाउट इट। डेफिनेटली डेफिनेटली आती है एक्चुअली। इवन मैं जब भी काम में था मुझे नहीं पता था। इवन ड्यूरिंग मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी मुझे कुछ नहीं पता था मेडिकल राइटिंग ऐसी कोई फील्ड भी होती है और ये सब कुछ चीज़ें होती है करके। बट थैंकफुली जो एक्सपोजर मिला सीनियर्स के थ्रू जो गाइडेंस मिला, आई विल डेफिनेटली गोना शेयर यू एंड द स्टूडेंट्स एज वेल। सो द मेडिकल राइटिंग जो एक टर्म है, वो एक अम्ब्रेला में आता है एक्चुअली साइंटिफिक राइटिंग के। So what is scientific writing is science is like it's a writing of science, right? So science include physics, chemistry, bio, anything, right? Which is uh, the umbrellas, right? So the thing is कि जो medical writing एक part है उसमें का, it is all about the medicines. जो हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो मेडिकल राइटिंग के अंदर में आते हैं। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक एक फाइल आपको मतलब एक जो जेपीजी है मेरे पास में एक पिक है वो मैं आपको शेयर करता हूँ क्विकली, सो दैट यू कैन जस्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है मेडिकल राइटिंग में और व्हाट आर द रोल्स ऑफ मेडिकल राइटर्स एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वहाँ पे क्या होती है, राइट? या इट इज या इज इट विजिबल। क्लियर ना? यस ओके यस इट। ओके ओके। So yeah, so here we need to understand the clinical trial cycle for understanding the medical writing. So all of us are has actually known कि clinical trials होता क्या है और clinical trials में कौन से phases है। clinical trials में जाने से पहले जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है वो क्या होता है, उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद में जो एक पोस्ट मार्केटिंग चीज होती है, पोस्ट मार्केटिंग का जो सर्वाइलेंस होता है वो क्या होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक हम सभी सभी को है, बस स्टिल मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर एक अगर नोवेल ड्रग है या कोई भी नोवेल मॉलिक्यूल है और उसको अगर हम लोग सो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल कोई भी कंपनी को अगर मार्केट में लाना है, इट्स इन द रिसर्च पीरियड, राइट? तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वी नीड टू द कंपनी हैज टू टेस्ट इट ऑन द एनिमल्स, या फिर उसको इन विट्रो टेस्टिंग करनी होती है मार्केट में आने से पहले, सब चीजें करनी होती है, राइट? सो प्री क्लिनिकल स्टेज में ऐसा होता है कि एनिमल टेस्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो हम लोगों को एनिमल एथिक कमेटी के पास में सबमिट करने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले बनाना होता है और वो बनाने के बाद में वी नीड टू सबमिट इट टू द एनिमल एथिक कमेटी, और उसके बाद में वी कैन स्टार्ट विद द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। एक बार एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हो गए उसके बाद में इट गोज टू द क्लिनिकल ट्रायल वाला स्टेज। तो इस इसके दौरान जो बीच में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स रन करने से पहले वी नीड अ प्लान, क्लिनिकल डेवलपमेंट प्लान कि कैसा होने वाला है। देन द आईएनडी दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो नोवेल है, इसके बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं गया है या फिर इसके बारे में कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं और ये ह्यूमंस पे फर्स्ट टाइम यूज होने वाला है, एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो दे नीड द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आईएनडी बनाने के लिए जो लोग होते हैं दे आर द एक्सपर्ट्स। तो हियर द मेडिकल राइटर्स कम टू द पिक्चर्स, जहाँ पे क्या होता है कि आईएनडी बनाने के लिए कुछ जो सेक्शंस होते हैं वो मेडिकल राइटर को बनाने पड़ते हैं, और कुछ जो सेक्शंस है वो स्टैटिस्टिशियन जो है वो लोग लिखते हैं, कुछ एपिडेमोलॉजिस्ट लिखते हैं, कुछ जो है वो रेगुलेटरी से आता है।
तो ये सब का एक सिंगल एक डॉक्यूमेंट बनता है विच इज आईएनडी। और आईएनडी बनने के बाद में इट नीड टू बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटीज। और वो सबमिट होने के बाद में अगर हमको वहां से जब अप्रूवल आता है, उसके बाद में वी कैन स्टार्ट द क्लिनिकल। तो एक बार फिर क्लिनिकल ट्रायल जब शुरू हो जाता है तो देर आर दी सर्टेन फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, राइट? यू आर अवेयर अबाउट इट, फेज 1 2 3 4, राइट? तो द थिंग इज कि जब ड्यूरिंग दिस क्लिनिकल ट्रायल देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी submitted to healthcare authorities. The first document in this list is the investigational voucher, investigator's voucher, right? तो इन्वेस्टिगेटर वाउचर क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिजिशियन, उसको सारी जो इंफॉर्मेशन है कि अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज 1 में हमने इतने इतने ह्यूमन बींग्स लिए हैं और सब्जेक्ट्स लिए हैं, और वो सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने ये रख दिया, हुआ क्या है उसमें एक्चुअली। तो ये सब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेटर वाउचर में आती है, ये हमको हेल्थ केयर अथॉरिटी के पास में सबमिट करनी होती है। So it is the one. So here also medical writers are involved. Then there are clinical study protocols. जो भी clinical trials हम लोग कर रहे हैं उसके लिए एक जो प्रोटोकॉल है वो जरूरी है, एक प्लान जरूरी है कि एक्चुअल में होने कैसे वाला है। और तुम्हारा जो भी ट्रायल्स जो रन होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके अंदर में तुम क्या करोगे। तो दीज ये जो डॉक्यूमेंट है इसको क्लिनिकल स्टडी प्रोटोकॉल हम लोग बोलते हैं। और ये भी बनाने का जो काम होता है वो ये मेडिकल राइटर्स का होता है। देन देर इज एन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। जो भी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है इस क्लिनिकल ट्रायल्स में या पेशेंट इन्वॉल्व है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो यहाँ पे हम लोगों को एक कंसेंट लेना होगा। तो ये कंसेंट लेने के लिए जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है वो पिक्चर में आता है। एंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म बनाने का भी काम एक मेडिकल राइटर ही करता है। Then we have developmental safety update reports. Then we have clinical study report कि जब clinical trials already हो चुका है तो होने के बाद में एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, राइट? और अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ेगी कि ये हमारे रिजल्ट आए हैं। एंड इफ हेल्थ अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि नहीं, नाउ इट इज लाइक गुड रिपोर्ट एंड द रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग और रिस्क इसमें कम है और जो बेनिफिट्स है उसके ज्यादा है, so वो हमको एक they gives a thumbs up and we can proceed for the next stage which is like and approvals stage. So now what is the thing is कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं इसका क्लिनिकल ट्रायल्स, और इंडिया में अब वो अप्रूव हो गया है और हम लोग हमको मार्केटिंग करना है कोई और सपोज और मार्केट में जैसे कि यूएस मार्केट में। सो वहां पे ऐसा होता है कि यू नीड टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज क्लिनिकल सॉरी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज सीटीडी। तो सीटीडी में कुछ मॉड्यूल्स रहेंगे, मॉड्यूल्स 5 मॉड्यूल्स होते हैं उसके। एंड उसमें भी मेडिकल राइटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कुछ मॉड्यूल्स पे। तो सी अभी तक के हम लोग देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स एक मेडिकल राइटर की जरूरत वहाँ पे है ही है। तो जो मैंने आपको अभी तक के जो भी ये बताया है कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इसमें एक जो रेगुलेटरी मेडिकल राइटर बोलते हैं उसको, वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि साइंटिफिक राइटर राइटिंग जो है उसमें ये एक बड़ी सी अम्ब्रेला है, उसके अंदर आते हैं मेडिकल राइटर्स। देन जो मेडिकल राइटर्स हैं वो उसके अंदर में और राइटर्स आते हैं विच इज नोन एज, एक तो है रेगुलेटरी राइटिंग वाले, फिर एक आते हैं सेफ्टी राइटर्स, देन एक आते हैं मेडिको मार्केटिंग वाले या फिर also known as the promotional और कंटेंट राइटर्स। तो अभी तक की जो हम लोगों ने पार्ट देखा है इट कम्स अंडर द रेगुलेटरी राइटिंग का पोर्शन। तो यहाँ तक सीटीडी तक का जो पोर्शन है वो रेगुलेटरी राइटर्स जो है वो करते हैं। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज है, जैसे कि अब मार्केट में तो ड्रग आ गया है, बट अब नया ड्रग है, अब लोगों को तो जानना जानना तो पड़ेगा ना कि कोई ये नया ड्रग आया है। इवन डॉक्टर्स नीड टू नो कि भाई एक ये ड्रग है और ये इफिशिएंट है। तो इसके लिए उनको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, कमाना तो कमाने के लिए उनको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, राइट? तो उसके लिए कुछ जो प्रमोशनल कंटेंट राइटर्स होते हैं दे कम इनटू द पिक्चर्स। व्हाट दे डू इज कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स हो गया या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया या फिर हेल्थ मैगजीन्स हो गई, ये हेल्थ मैगजीन्स जो है ये वो लोग पब्लिश करते हैं। और इसके जरिए जो बाकी जो भी ऑडियंस है जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या फिर एक आधा लेमैन हो गया, जो बंदा एक आधा, अगर कोई, मुझे कैसे पता चलेगा ना कि एक नया ड्रग आया है, राइट? तो मेरे जो डॉक्टर है उसको वो चीज़ पता रहनी चाहिए कि हाँ एक ड्रग आया है, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती है वहाँ पे
एक तो डेक प्रिपरेशन, पीपीटीज बनानी होती है, राइट? वो पीपीटीज बना करके प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर। तो जो पीपीटीज जो बनाने का काम होता है, वो काम होता है ये जो प्रमोशनल राइटर्स होता है उनका। एब्स्ट्रैक्ट बनाने का काम प्रमोशनल राइटर्स का होता है, एंड पोस्टर्स बनाने का काम, देन हेल्थ मैगजीन में ये सब काम जो होते हैं वो एक प्रमोशनल राइटर्स के होते हैं। उसके बाद में अब मार्केटिंग भी हो गई। अब ड्रग आ गया है मार्केट में, और पहले जो था वो एक क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ लोगों तक के कुछ जो पेशेंट्स है उसके कंट्रोल सिचुएशन में वो उसको ड्रग दे रहे थे हम लोग। बट अब जब इट इट इज लाइक अ बिग पिक्चर, राइट? कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लोग अभी यूज करेंगे। तो जब बहुत सारे पेशेंट यूज करेंगे तो सेफ्टी कम इनटू द पिक्चर, राइट? कि अभी तक तो ठीक था, वो कंट्रोल सिचुएशन में था। बट अब जब हम लोग ज्यादा लोगों को दे रहे हैं और द सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल्ड, सो so उसको एक सर्वाइलेंस पे रखना बहुत जरूरी है। तो देयर अ सेफ्टी राइटर कमिंग टू द पिक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट रिपोर्ट राइटर्स। सो इसमें ऐसा होता है कि देर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्स विच इज इन्वॉल्व। इट इज ऑल्सो नोन एज द पीरियोडिक बेनिफिट इवेल्युएशन रिपोर्ट हो गया, या फिर पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट हो गया, विच इज ऑल्सो नोन एज पीएचयूआर। देन वी हैव रिस्क मिटिगेशन रिपोर्ट हो गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ये बनाने का काम जो होता है वो सेफ्टी राइटर का होता है। इट इज दे आर आल्सो नोन एज द एग्रीगेट रिपोर्ट राइटर, दे आर आल्सो नोन एज द फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो राइटिंग का जो पार्ट है, ये फार्माकोविजिलेंस में आता है। So these are the different writer which come into the picture when during this drug life cycle, right? So आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग जो है मॉलिक्यूल की, जो स्टार्ट होता है टू द एंड, पूरा का पूरा एंड, राइट? कि ये जो डॉक्यूमेंट जितने भी है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट एज इन कि इसको अपडेट करना पड़ता है डेली। कि जैसे कि अब एक आधा इन्वेस्टिगेटर्स वाउचर है, फेज 1 जो है वो काफी सालों तक चलेगा। तो ऑन ईयरली बेसिस इसको हम लोगों को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट की रिक्वायरमेंट में मेडिकल राइटर की जरूरत है। फिर जो एक आधा डेवलपमेंटल सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट हमने लोगों ने ले लिया कि जो भी उसके किसी पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, वो तो बार बार अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक साल में ये इन पेशेंट्स में एडवर्स इफेक्ट आए, दूसरे साल में उन्हीं पेशेंट में कोई और एडवर्स इफेक्ट दिख गए, तो इसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। सो जो काम है वो मेडिकल राइटर का वो चलता ही रहता है और काम आता ही रहता है। वी नीड टू अपडेट द डॉक्यूमेंट्स एज पर द हेल्थ अथॉरिटीज का जो भी कॉल आता है, तो वहां से हमको अपडेट करना होता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द मेडिकल राइटर्स, एंड यही है जो मेडिकल राइटर्स है जहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स की जो साइकिल है, वो उसमें सब जो मेडिकल राइटर का जो एक रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपर्ली, एंड आई थिंक यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर कुछ लगता है तुमको कि जो नहीं समझ में आया है। या पवन, एक्चुअली आपने बहुत ही लाइक सिंपल तरीके से लेकिन डिटेल में काफी अच्छे से समझा दिया ईच एंड एवरी स्टेप। एंड लाइक अभी मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि एक मेडिकल राइटर राइटर का जो रोल है वो डिफरेंट स्टेप्स पे कितना ज्यादा हो रहा है। एंड ऑल्सो यू हैव टॉक्ड अबाउट प्रमोशनल राइटर्स, सेफ्टी राइटर्स, रेगुलेटरी राइटर्स। तो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, जो एक एसोसिएटेड स्ट्रीम्स आई कैन कॉल देम मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कैन यू लाइक जस्ट ब्रीफ अबाउट इट, लाइक समवॉट, अगर आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं इस बारे में तो। Okay, so you mean ki what are the roles of the regulatory writers and or the stream you are talking about? कि regulatory writing क्या होता है, वैसे बोल रहे हो? Yeah, I mean to ask that, like, if you can elaborate us about associated streams, so that will be good for students as well. Okay, so the thing is कि ये जो streams हैं, जितने भी streams हैं, either you call it regulatory writing और promotional writers writing, या फिर एक सेफ्टी राइटर हो गया, ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, मेडिकल राइटर्स के अंदर, राइट? तो द थिंग इज कि अगर मैं अभी रेगुलेटरी राइटर हूँ, अभी इन माय पास्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं क्लिनिकल ट्रायल्स की ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आईबीज हो गया, इन्वेस्टिगेटर्स वाउचर हो गया, या फिर क्लिनिकल स्टडी प्रोटोकॉल हो गया, मैं इस पे काम करता था। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि तुम अगर इसी पे काम कर रहे हो तो इसी पे काम करोगे। इट इज लाइक कि अभी मैं रेगुलेटरी राइटर था, अभी जो मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मैं सेफ्टी राइटर हूँ। तो इफ यू वांट टू लाइक चेंज योर जो भी एक डेजिग्नेशन है, या फिर जो भी एसोसिएटेड स्ट्रीम है, जो तुम अभी जैसे रेगुलेटरी राइटिंग से मैं अभी सेफ्टी राइटिंग में हूँ,
मैं चाहूँ तो मैं सेफ्टी राइटिंग से साइंटिफिक राइटिंग में भी जा सकता हूँ. So it is ओके. like that. ओके मीन्स स्टूडेंट लाइक अगर वो जब चाहे तब दे कैन बिकम प्रमोशनल राइटर्स, सेफ्टी राइटर्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास होती है कि वो स्विच कर सके. ओके, दैट्स ग्रेट. Yes, सो दीज आर द एसोसिएटेड स्ट्रीम्स, राइट? yes, yes. Yeah. Okay. So, Pawan, can you just let us know like what kind of tools and techniques can be used? And if कोई student अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और उनको लगता है कि ये जो मेडिकल राइटिंग ये फील्ड है वो उनके लिए है, तो वो अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक ये ड्यूरिंग देयर स्टडीज, लाइक वो कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं सो दैट दे कैन स्टैंड आउट, और जब वो इंटरव्यू के लिए जाए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए. Okay. So it's a very nice question actually. क्योंकि ड्यूरिंग माई मास्टर्स ऑल्सो मुझे कुछ ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि जाना कैसे है, घुसना कैसे है. बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ किस तरीके से कौन सी स्किल्स मुझे चाहिए. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल विच इज रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेशन डेफिनेटली. क्योंकि राइटिंग का पार्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक टर्म्स. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, मेडिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने चाहिए. And the best thing you can do as of now, as a graduate student, is कि तुम रीडिंग बहुत ज्यादा तुम्हें करना है. जैसे कि there are lots of research articles which are now available on internet. लिटरेचर आर्टिकल्स है, जो भी है, रीड करो, रीड इट, देन ट्राई टू मेक इट सिंपल, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जैसे कि कोई भी अगर हम लोग रिसर्च आर्टिकल एक उठाते हैं, इट इज इन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, राइट? कि वो एक सिंपल इंसान को समझ में नहीं आएगी. तो हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट 20 पेजेस का एक रिसर्च आर्टिकल है, उसको हम लोगों को सिर्फ 10 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है. तो हाउ वी कैन डू दैट? तो ये जो स्किल्स है वो सीखने लायक है कि कॉम्प्लेक्स कुछ भी डॉक्यूमेंट है उसको सिंपल लैंग्वेज में, और सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया या फिर स्लाइड डेक हो गया या पीपीटी हो जिसको बोलते हैं हम, उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये एक स्किल्स हो गई. ये एक स्टूडेंट्स को डेवलप करनी चाहिए ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन. द वन मोर थिंग द स्टूडेंट कैन डू इज जस्ट इन्वॉल्व इन a research and try to publish it. पब्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुमको एक प्रोसेस समझ में आ जाती है तो पब्लिकेशन के दौरान क्या क्या प्रोसेस है. क्योंकि एक बार तुम जब रिसर्च में इन्वॉल्व होते हो, तुमने रिसर्च कर ली, बट नाउ जब पब्लिकेशन का पार्ट आता है तो हम लोगों को एक पब्लिकेशन हाउस को हमको अप्रोच करना होता है, जर्नल्स को अप्रोच करना होता है. यू नीड टू सिलेक्ट द जर्नल्स ऑल्सो, कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस चीज में जाएगा. तो इससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, और ऑलरेडी तुमने ये जब प्रोसेस की है तो इंडस्ट्री में इसका बेनिफिट होगा. कि वो जब भी इंटरव्यू के दौरान भी एक तुमको बेनिफिट होगा कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या प्रोसेस है तुम बताओ, तो या फिर क्या गाइडलाइंस है इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ऑल दिस इज जो भी चीजें हो रही है ये गाइडलाइन के हिसाब से ही होगी. एंड एज जो भी ड्रग इन्वॉल्व है वो द कंज्यूमर इज पेशेंट्स, जिनको ऑलरेडी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेटेड है, और वो लोग वो कंज्यूम करने वाले हैं. तो एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर ऑलरेडी इन्वॉल्व. तो एक रेगुलेटरी गाइडलाइन के बारे में भाई आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में ये गाइडलाइंस होती क्या है. तो जैसे कि आईसीएच की जीसीपी गाइडलाइंस हो गई, कि ये क्या होता है. तो बाद में फिर जीवीपी गाइडलाइंस एक होती है, गुड विजिलेंस प्रैक्टिसेस उसको बोलते हैं. तो वो क्या होता है, इस बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, एक स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. तो या, और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि रेफरेंसिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एंड नोट हो गया, मेंडली हो गया. ये चीज़ें हम लोगों को यूज़ करनी आनी चाहिए. और सबसे मेन अभी जो है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक. फिलहाल तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा या वर्ड सुना नहीं होगा. एंड जनरेटिव एआई करके जो टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, या. या फिर देयर आर सर्टन एआई सर्च इंजिन आल्सो, एआई पावर्ड सर्च इंजिन. वो जो है वो थोड़ा से अगर पता रहे, ज्यादा अगर पूरा इन डेप्थ नहीं पता रहा, अगर बेसिक आइडिया है उस बंदे को, तो ही कैन स्टैंड आउट. जो बाकी का क्राउड है अगर कोई पोजीशन के लिए, तो ही कैन स्टैंड आउट देयर. सो या, दीज एग्जैक्टली. आर दी मतलब important. हाँ,
या एग्जैक्टली लाइक कि जितना अगर एडवांसमेंट हो रहा है, अभी जो न्यू चीजें आ रही है, उतना जितना ज्यादा आप अपडेटेड रहोगे, और वैसे भी लाइक पवन जो इनकमिंग जनरेशन है, वो लोग वैसे ही जो न्यू अपडेट्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, उससे वो लोग यूज टू हो जाते हैं। तो इतना ज्यादा उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जहाँ पे अभी जो जनरेशन है वो लैक कर रही है, वो ये है कि एक जगह बैठकर आप लोग अगर पढ़ रहे हो, बिकॉज बीइंग अ मेडिकल राइटर, जितना पवन ने मुझे बताया, ऑब्वियसली उस वजह उससे मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि जितना आप रीडिंग हैबिट बिल्डअप करोगे, बिकॉज जैसे पवन ने बताया कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसका आपको आई कैन से लाइक एब्स्ट्रैक्ट, राइट, लाइक एक समरी, कि कैसे यस आप यस। इतना बड़ा आर्टिकल है उसको कंसाइज करके मेन जो चीज है वो एक बना सकते हो। तो ये सारा दिमाग जो आपको चलाना है ना, तो वो ये 4 साल जब आपको मिल रहे हैं आपके ग्रेजुएशन के, तो इसमें आप काफी अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप लाइक कि सीधा आर्टिकल पढ़ने की हैबिट डालते हो, जैसे जो मेरे स्टूडेंट है एसपीबी एकेडमी में, मैं उनको बोलती हूँ कि इफ आई एम गोइंग टू टीच यू एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स टुडे, देन यू मस्ट गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च कि टीबी कैसे होता है। ऑल्दो हम लोग बीइंग फार्मा स्टूडेंट्स, हम इतना नहीं पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि टीबी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, कितने लेवल की टीबी है। बट आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि आप लोग जाओ पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। और जब ये रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होगी, तो ये आपको आगे जाके स्टैंड आउट करेगी। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में बैठोगे और अगर आपको किसी ने असाइनमेंट दे दी, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह भी एक बार इंटरव्यू के जो अलग अलग स्टेप्स होता है ना, उसमें कभी 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 आपको असाइनमेंट्स दी जाती है कि आपको बोलेंगे कि ये आर्टिकल है, इसको कंसाइज समरी बना के दे दो। प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग पवन, क्योंकि No, कभी no, कभी ये you're होता है। absolutely correct. You're absolutely correct. And this is the only assignment they are giving, जो भी अभी मैं देख रहा हूँ। आई मीन हम्म। मैंने भी काफी इंटरव्यूज दिए हैं, सो मैं देखता हूँ कि व्हाट दे आस्क फॉर इसकी इसकी एक समरी बना दो। ये टेबल फॉर्मेट जो है, वो टेबल फॉर्मेट को तुम इसमें कन्वर्ट कर दो, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट को एक टेबल में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे मैंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको सिंपल बनाना है। तो दैट इज, यस। एंड तुम्हारा टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अब ऑलरेडी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज द टारगेट ऑडियंस, अगर तो उसको एकदम लेमन लैंग्वेज नहीं जरूरत, राइट। उसको मेडिकल कंसेप्ट पता है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज समझती है। तो मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के लिए उसको एकदम लेमन में मैन्युस्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उसको कॉम्प्लेक्स ही रखोगे तो चलेगा, बट देर आर अदर सोर्स डॉक्यूमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि तुमको कुछ डेटा दे दिया, रिजल्ट्स दे दिए, फिर तुमको कुछ प्रोटोकॉल्स का डेटा दे दिया, तो वो वहां से निकाल करके और तुमको एक पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट बनानी है, जो एक एचसीपी जो बोलते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर फिजिशियन है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी रिसर्चर है वो उसको वो रेफर कर सकता है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन प्लीज गो आइडियस। एग्जैक्टली बिकॉज जो वो आपसे कंपनी में काम करवाने वाले हैं, वो कोई भी अगर उनकी जगह आप भी कंपनी ओनर हो, तो आप यही चाहोगे कि मैं सामने वाले बंदे को ऐसे असेस करूं कि ये मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो कोई भी आपको असाइनमेंट दे देंगे। अब ये जो एक स्किल है कि आप पढ़ के समरी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, ये एक दो दिन में तो नहीं आती है, ओके। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो अच्छा यही होता है कि अगर आप अभी से डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स पढ़ने की अगर आदत डालो, तो ये आपका नॉलेज भी इनहांस करेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और ये आपको स्टैंड आउट करेगा फॉर श्योर। या सो दैट वाज द वेरी गुड थिंग दैट पवन हैज सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स। एंड कोई स्टूडेंट है और उनको एज अ मेडिकल राइटर ज्वाइन करना है, तो एग्जैक्टली एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी और क्या स्टेप्स वो लोग फॉलो कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट इनटू मेडिकल राइटिंग। लाइक कि अगर सिर्फ बी फार्म है तो सफिशिएंट है, या एम फार्म चाहिए, या पीएचडी चाहिए? सो प्लीज एलैबोरेट अबाउट सी द थिंग इज कि ये वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक बी फार्म कैंडिडेट को भी ले लेते हैं। जैसे कि कुछ सी आर ओज है, जैसे कि पेरेक्सल हो गया, या फिर आई क्यू हो गया। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बैचलर डिग्री वालों को भी एज ए मेडिकल राइटर ले लेते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू हैव अ मास्टर डिग्री, दैट्स अ बेटर थिंग। कि तुमको जो मास्टर डिग्री में तुम रिसर्च करते हो, यू गॉट गेट एन एक्सपोजर, और कहीं पे भी कोई भी प्रमोशन की जब बात आती है तो वहां पे तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक बैचलर डिग्री है उसके उसकी वजह से। तो इट्स बेटर कि तुम मास्टर डिग्री ले लो, एंड देन यू गो टू मेडिकल राइटिंग, या फिर यू एंटर इनटू मेडिकल राइटिंग फील्ड। अब जैसे कि मैंने काफी देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मेरी जो करंट पे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, देयर आर बैचलर स्टूडेंट्स हु आर लाइक इन मेडिकल राइटिंग, बट अब उनको चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है,
बिकॉज अगर वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं, जैसे कि जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, लिली हो गया, इलाई लिली हो गया, फिर देन सनोफी है, सो दे हम्म। आस्क फॉर एटलीस्ट अ मास्टर डिग्री इन फार्मा, और उस फार्मा या फिर कोई भी स्ट्रीम जो बायोटेक में भी चलता है, और उसके बाद में फिर आई मीन दे स्टैंड आउट कि नहीं और जहाँ अगर ये भी जो सीआरओ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कोई बंदा है जो मास्टर है और एक बंदा है जो बैचलर्स है, तो दे विल डेफिनेटली प्रेफर अ मास्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि दे हैव एक्सपोजर, उनके पास एक रिसर्च आर्टिकल होता है, उनके पास में एक स्पेशलाइजेशन है उस चीज को समझने का, दे हैव दैट नॉलेज। तो होता ऐसे है कि वो लोग प्रेफर करते हैं पीएचडी। अगेन इट इज नॉट दैट मच रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ कंपनीज में, बट अगर है तो इट्स ओके, इफ नहीं भी है तो कोई बात जैसे आपने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वो घुसे कैसे अगर मेडिकल राइटिंग के अंदर में उनको जाना है, तो द वन थिंग इज कि पहले तो अपना सीवी अच्छा रहना बहुत जरूरी है, तुमको स्किल्स तुम्हारे रहने चाहिए मेडिकल राइटिंग के लिए। द सेकंड थिंग इज कि यू नीड टू अप्रोच द the professionals who are already in that scene, who are already medical writers, और उन लोगों के थ्रू you can get into that field because as you can also see कि फिलहाल में it is more likely to be like reference वाला चीज आ गया है कि तुमको डायरेक्ट नहीं ले लेते हैं, you need to have that reference, so या this can be done via cold mail, dropping a cold mail थोड़ा सा, और लोगों से कनेक्ट कर करके हम लोग उसमें घुस सकते हैं मेडिकल राइटिंग में, द सेम वे आई डिड 2 साल पहले मैंने भी ऐसे ही किया। ओके, लाइक कि नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है, अगेन द सेम वे। डेफिनेटली। और ये नहीं लाइक कि कुछ भी करियर में करना है, चाहे आप कुछ भी करो किसी भी स्ट्रीम में, नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन, कि तुम लोगों से कम्युनिकेट करके कैसे नेटवर्किंग कर रहे हो और कैसे कम्युनिकेट करके एक जॉब में जा रहे हो, so it matters everywhere. So one thing I would like to ask you, like, does being from the premium institutes add into your selection criteria? Like if a student is from NIPER or PHU or somewhere from the premium institute, तो क्या इससे कोई फायदा होता है सिलेक्शन में? डेफिनेटली वो एक फायदा होता है। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ ओनली, जैसे कि मैं भारतीय विद्यापीठ से हूँ, राइट, एंड इफ अब मेरे यहाँ पे एक कैंपस आया था, सोनोफी का कैंपस आया था, सो मैंने कहा कैंपस में मैं नहीं लिया और आई वेंट फॉर पीएचडी, ठीक है। फिर द थिंग इज कि जो सोनोफी जो कैंपस आया था, कैंपस से उन लोगों को जब लेकर गए तो दे हैड अ गुड पैकेज उस टाइम पे, वही सनोफी नाइपर भी गई थी, जब नाइपर से उन्होंने बंदों को उठाया, ते उन्होंने उनको थोड़ा पैकेज जो है, इट दे हैव अ बेनिफिट, एक थोड़ा जो है लेवल उनका जो है पैकेज देने का वो थोड़ा बढ़ा देती है, तो दैट इज द पर्क बीइंग इन अ नाइपर और अ टीयर 1 कॉलेज, वो तुमको एक पर्क मिल ही जाता है। बट अगेन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम दूसरे कोई बोगस कॉलेज से हो या फिर टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से हो, सो यू कांट गेट इनटू मेडिकल राइटिंग, यू विल गेट इनटू मेडिकल राइटिंग बट द पैकेज विल बी लेस कंपेयर टू द टीयर 1 स्टूडेंट्स। देन एक मार्केट करेक्शन तुम करवा सकते हो आफ्टर 2 years वगैरह के बाद में, व्हेन यू गेट एन एक्सपोजर, तो तुम मार्केट करेक्शन करवा सकते हो, बट स्टिल दैट जो वो जो 2-3 साल का जो स्ट्रगल है एक टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे का और एक नेपर से पढ़े हुए बच्चे का, दैट इज द थिंग, वो एक आ जाता है बीच में। Okay, so being the Naipur Mohali alumni, I can confirm on this. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेज में फर्क होता है, प्रोफाइल में भी डिफरेंस होता है। अदरवाइज सेम प्रोफाइल पे कंपनी सेम पैकेज ही देना प्रेफर करती है, बट अगर पैकेज डिफरेंस है तो प्रोफाइल भी थोड़ा सा अलग होता है। सो आई कैन कंफर्म दैट। एंड वन थिंग दैट पवन सेड वेरी वेल, कि अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बट वहां पे आपको इनिशियली 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अभी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है और आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप जीपैट करके, नाइपर करके या आईटीपीएचयू या कोई भी अच्छा कॉलेज करके अपना कैंपस प्लेसमेंट करवा सकते हैं, तो इट्स बेटर टू गेट इनटू द स्ट्रगल नाउ, कि बाद में स्ट्रगल डेफिनेटली। करना। क्योंकि एक बार जैसे आप पास आउट हो जाते हो और आप देखते हो कि आपके बाकी फ्रेंड्स प्लेस हो रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन एक अलग से ऐड होता है। ओके, तो वो जो स्ट्रगल है वो एक डिफरेंट लेवल का मेंटल स्ट्रगल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी स्ट्रगल करके एक अच्छा अच्छा कॉलेज ले लो, बट अगर नहीं हो पा रहा है, किसी रीजन से नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तभी भी आपके पास चांस है कि आप कोई ना कोई अच्छा करियर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यस आपको डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी अभी है तो प्लीज डोंट लेट इट गो। उस अपॉर्चुनिटी का आप अपने लिए फायदा उठाओ और एक अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करो। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। एंड Yes. And नेक्स्ट थिंग, Aarti, I also want to add one thing into this.
कि जो Tier 1 कॉलेजेस से होते हैं जैसे नाइपर इंस्टीट्यूट से, दे आर प्लेस्ड इनटू द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक लिली में चले या जाएंगे, सनोफी में चले जाएंगे, या फिर मर्क हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। आई मीन, बिकॉज ये जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हायर फ्रॉम द रेपुटेड कॉलेजेस ओनली। या तो एग्जैक्टली। नहीं तो यू नीड अ वेरी तगड़ा रेफरेंस जाने के लिए वहां पे, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ तगड़ा रेफरेंस इन योर इनिशियल डेज। तो एक पर्क वो भी है कि अगर तुम नाइपर से हो या फिर कोई बड़ी Tier 1 कॉलेज से हो, तो तुमको जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे जाने का जो जो उतना स्ट्रगल नहीं होता। वेराज अगर तुम Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हो, तो तुमको वो बड़ी कंपनीज प्रेफर नहीं करते हैं। वो तुमको एकदम से प्रेफर नहीं करते। वो एक आधी जो स्मॉल CROs हो गई या फिर स्मॉल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, तुमको वहां पे तुमको जाना पड़ेगा। देन फ्रॉम देयर यू नीड टू गेट इनटू द बिगर ऑर्गेनाइजेशन अगेन, दैट वो जो 2-3 साल का पीरियड है, दैट इज अ स्ट्रगल। तो यहाँ पे वो एक बढ़ जाता है। या दैट मीन्स कि अगर आपको किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी बड़ी कंपनी में जाना है, तो आपको अपने साथ 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाना पड़ेगा। वेराज अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, तो एज अ फ्रेशर भी आपको ले लिया जाता है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स है लाइक नाइपर, बीएचयू वगैरह, उनके जो स्टूडेंट है, उनके जो एलुमना है, वो ऑलरेडी वहां पे वर्क करते हैं। और किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट लाने का काम वहां के एलुमनाई नेटवर्क का बहुत ज्यादा उसमें उनका हाथ होता है। एग्जैक्टली ये है। तो अगर सपोज अगर मैं नाइपर से हूँ और मेरे जो सीनियर्स है, जो एलुमनाई है नाइपर के, वो लोग अगर किसी अच्छे बड़े कॉलेज कंपनी में है, लाइक सैनोफी है और बाकी की इलाई लिली है, तो दे कैन आस्क देम टू कम इनटू द कैंपस एंड टू हायर द स्टूडेंट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द एडवांटेज। ओके, इवन आफ्टर अगर आप पास आउट हो जाए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस। आई मीन आपके काफी सीनियर्स कॉलिग्स के पास में आपको रेफरेंस मिल सकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, आई कैन से, एन एडवांटेज कि अगर आप यस। मेहनत कर लेते हो और अगर आप जा सकते हो, ठीक है, अच्छे कॉलेज में, तो ये आपके लिए एक डाउन बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर नहीं जा सकते तो फिर भी डिमोटिवेट मत होना। ओके, देन ऑल्सो यू कैन गेट इनटू अ गुड प्लेस लाइक पवन डिड। ओके, सो या, सो दैट वाज द थिंग। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पवन इज दैट कि एग्जैक्टली क्या फ्यूचर है मेडिकल राइटिंग में स्टूडेंट का। एंड प्लीज इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू टॉक अबाउट सैलरी रेंज ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट मेनली वो देखना चाहते हैं कि मैम क्या सैलरी मिल रही है हमको, क्योंकि एक साल हम जीपैट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम 2 साल मास्टर्स करेंगे, फीस भरेंगे, उसके बाद हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ओके, सो द थिंग इज मेडिकल राइटिंग एज अ फील्ड, ये काफी काफी ग्रोइंग है। आई मीन, पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि मेडिकल राइटर्स का नाम भी लोगों को पता नहीं था। इवन आज भी काफी स्टूडेंट्स मेडिकल राइटर्स होते क्या है। बट द थिंग इज कि अभी जो है मेडिकल राइटर काफी लोगों को पता है का यूज आ रहा है, और व्हाई इट इज लाइक सो मच बूमिंग, ये भी लोगों को पता है। एंड इट इज एक्चुअली वेरी मच बूमिंग। अभी कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कोई भी CROs हो, इवन छोटी से छोटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लो तुम, दे नीड अ राइटर। एक साइंटिफिक राइटर या फिर मेडिकल राइटर जो बोलते हैं उसको, वो जरूरत, मतलब इट इज इट्स अ नीड। और एक स्किल्ड राइटर की जरूरत काफी है मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग जो पहले हैं, जो पहले आए हैं और वो घुस गए अंदर, क्योंकि पहले तो इतना राइटिंग का कुछ क्रेज नहीं था और पता ही नहीं था लोगों को कि राइटिंग होता क्या है। तो जो लोग घुस गए हैं, दे आर लाइक ओके ओके राइटर्स, और उनको मतलब दे लैक सम ऑफ द स्किल्स। जैसे कि अभी जो जनरेटिव AI टूल्स हो गया, इससे अगर हम लोग अपडेट करते हैं खुद को, तो क्योंकि वो लोग ये चीज लैक कर रहे हैं, बहुत लैक करते हैं वो लोग, क्योंकि दे आर लाइक ओल्ड नाउ, और उनको ये टेक टेक वो टेक से भी नहीं है, राइट। यू द स्टूडेंट्स आर लाइक जेन स्टूडेंट्स स्पेशली, ये लोगों को एक टेक्नोलॉजी का क्रेज है। दे आर मोर लाइकली कि Right. नहीं, इसको कैसे करना है, लेट्स डू इट इन द स्मार्ट वे। सो द स्मार्टर दे आर, देन डेफिनेटली दे हैव एन ऑप्शन कि नहीं, the chances of them getting placed into the as a medical writer in any company are more. तो डेफिनेटली मेडिकल राइटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया भी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के हर एक स्टेज पे, प्री क्लिनिकल से लेकर के पूरा पोस्ट मार्केटिंग तक के मेडिकल राइटर की जरूरत होती ही है। और ऐसा नहीं कि ड्रग मॉलिक्यूल मार्केट में आ गया, उसका काम खत्म हो गया मेडिकल राइटर का, नहीं। वो अपडेट करने के लिए भी मेडिकल राइटर की जरूरत पड़ती ही है। रिपोर्ट्स को अपडेट करना है तो मेडिकल राइटर की भी जरूरत है। तो नए नए ड्रग्स मार्केट में आते ही जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनते ही जाएंगे, और मेडिकल राइटर्स की जरूरत पड़ती ही जाएगी। ओके, सो पवन, अगर हमको ये पता करना है कि इफ स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर, तो उनकी ज्वाइनिंग सैलरी क्या हो सकती है, और एक 5 साल के बाद
स्टूडेंट मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अब तो स्टूडेंट नहीं है, तो उनकी क्या सैलरी जा अगेन सकती है? आरती, इट इज लाइक वेरी, बहुत वेरिएशन आता है सैलरीज में। जैसे कि कौन से कॉलेज से तुम हो, देन हाउ स्मार्ट यू प्ले। जैसे कि दिस इज, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनीज में अगर तुम 10 साल से हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सैलरी उतना नहीं ग्रो करेगा, यू नीड टू स्विच। तो एज अ Exactly. फ्रेशर यू कैन, आई कैन गिव यू अ रेंज कि कितना मिलता है। इफ यू बिलोंग टू इट फ्रॉम अ tier 1 कॉलेज लाइक नाइपर्स, एंड इफ यू आर गेटिंग अ कैंपस प्लेसमेंट अगेन, तो कैंपस प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर तुमको कैंपस से प्लेसमेंट मिलता है तो तुमको एक अच्छा खासा हुपिंग अमाउंट मिल जाएगा। इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, अभी का जो सिनेरियो है, so you will get a medical writer will get around 6 to 7 lakh on an average for a NIPER student who is placed from a campus। ठीक है, उसकी उतनी रहेगी। उसके बाद में फिर जो सेकंड अगर You टीयर can टू consider, कॉलेजेस। I think, for like from NIPER, you can consider minimum as 6 LPA for medical writers. उससे यस, ज्यादा ही रहना चाहिए. It may go up यस, to 8 or 10. Maybe it may go up to 8 or 10 for freshers. I'm talking about. यस, Yeah, यस, please. एंड डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज सैलरी जो Yeah. एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। और बाद में जस्ट सेकेंड इज कि अगर कोई बंदा टीयर 2 कॉलेज से जाता है तो इट इट गोज टू लाइक 4.5 to 6 तक की उनका सैलरी होता है। और टीयर 2 टू टीयर 3 वाले का अगेन द कैंपस सिलेक्शन। द सेकंड कोई रीजन से तुम इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हो और तुमको ऑफ कैंपस लेना पड़ता है, प्लस ऑफ कैंपस जाना पड़ता है किसी के रेफरेंस थ्रू वगैरह, तो अगेन द नंबर चेंजेस। जैसे कि पहले इसमें मैंने बोला था कि इट इज लाइक समवेयर अराउंड 6 to 7 तक के चले जाएगा। बट जो सेकंड केस है ऑफ कैंपस, अगर तुम जाते हो तो इट कम टू थोड़ा लोअर ब्रैकेट में आ जाता है। वो इट इट गोज टू लाइक 4 to 5 वाला, जो टीयर 2 को मिल रहा था ऑन कैंपस, वही तुमको अभी Hmm. ऑन Off camp. ऑफ कैंपस मिलेगा नाइपर वालों को। Yeah. और जो टीयर 2 वाले हैं उनको ऑफ कैंपस में अगर से वो जाते हैं तो इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 lakh ओनली। तो दिस इज Okay. द डिफरेंस ऑफ पैकेज, यस। बट अगेन इट्स नॉट अबाउट कि तुम मतलब कौन से कॉलेज से हो। अगर तुम अच्छा खेलते हो, इफ यू प्ले स्मार्ट, देन इवन इफ यू आर फ्रॉम टीयर 2 कॉलेज, यू कैन गेट गुड पैकेजेस ऑफ द टीयर 1 कॉलेज स्टूडेंट एज वेल। तो उस तरीके का भी तुमको मिल सकता है, यू हैव टू प्ले दैट वे। ओके. लाइक यू मीन टू से कि अगर आप 2-3 साल बाद में कंपनी स्विच करते हो और लाइक प्रमोशन के लिए बार बार अप्लाई करते हो, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते यस, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड ओनली। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, एंड neither I will take an example the name of the organization. He was in some small organization only, and he was from a tier 2 college। ठीक है, तो उसने क्या किया कि he got an package of around 5 लाख का पैकेज था उसका। एंड 5 लाख के पैकेज से उसने ज्वाइन किया। 2 साल उसने 5 लाख के पैकेज पे किया, इट वेंट टू 5.5। Then after that, he went to a bigger organization which is product based company। 2 years के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ, एंड वहां पे उसने हिट एक 14 लाख का पैकेज फ्रॉम यहाँ पे इतने कम पैकेज से, एंड डायरेक्ट इट इज 100%, मोर देन 100% हाइक। मेडिकल राइटर ही था, रेगुलेटरी राइटर था, एंड उसने 14 LPA का, हैं. सॉरी, How much? 14 14. LPA। That's Yes, one great. four। Yeah. So this is the thing. You have to play smart, and see, medical writers are paid well if you play smart। एग्जैक्टली exactly. सो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फार्मा में मतलब करियर नहीं बन सकता, तो ये आप लोग ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें पता होती है स्टूडेंट्स को. हम लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं. इवन आफ्टर ज्वाइनिंग नाइपर मुझे ये सारी चीजें तब भी नहीं पता थी, अनलेस एंड अनटिल जब कैंपस आना स्टार्ट हुआ और जब हमारे पास जब जॉब डिस्क्रिप्शन आता था ना, तब भी इतना नहीं समझ आता था कि एग्जैक्टली चाहिए क्या इन लोगों को. ऐसा है. तो इसलिए आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ऑप्शंस है, क्या सैलरी रेंज है. ओके, तो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड और कंफ्यूज मत हो जाओ. अभी देखो, जैसे पवन ने भी बताया कि जस्ट इन 2 years दैट पर्सन गॉट अ हाइक. ओके, और वो भी सीधा 5-5.5 लाख
से उनको सीधा 14 लाख पर एनम का पैकेज मिला, दैट इज वेरी गुड। ओके, सो इट अगेन डिपेंड्स कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड आपका कम्युनिकेशन कैसा है, नॉलेज कैसा है, आप कितना प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली कन्विंस कर पा रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। ओके, सो इट्स वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से ही अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करो, अपने अंदर वो नॉलेज जो एक विजडम आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसकी आप बिल्डअप करने की कोशिश करो, क्योंकि जो कंपनी के एचआरस होते हैं ना, जो आपको हायर करेंगे, वो सालों से यही काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे मतलब कैच कर लेंगे कि ये बंदा क्या सही है क्या नहीं है, वो उनको समझ आ जाए, तो यू कैन नॉट फेक आउट देयर। ओके, सो या सो ये सारी स्किल्स है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, रिगार्डिंग दिस लाइक वीडियो या इस टॉपिक रिलेटेड, जिसके आंसर आप पवन से चाहते हो, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई कि उनके आंसर मैं पवन से लेकर आऊँ। एंड ऑल्सो अगर आप मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हो और अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं, then you can just fill up the form that is given in the description, and I will also give the link in the comment box also, so आप वो फॉर्म को फिलअप करके एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन अपना बुक कर सकते हो। तो आप चाहे तो मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक करके अपने लिए एक जो एक सुटेबल लाइन ऑफ करियर है वो पता कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि आपको मेडिकल राइटिंग में ही जाना है, तो आई कैन कनेक्ट यू विद पवन ऑल्सो, तो पवन भी आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और हम लोग हमारे और आपके टाइम के अकॉर्डिंग एक सेशन आपका बुक करेंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, सो एट द लास्ट, पवन, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप अपने साइड से स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहोगे क्या? Definitely. There are some of the suggestions from my side. is कि see, as of now, हर 3 साल में और हर 2 साल में कॉर्पोरेट ट्रांजिशन होता है काफी। पहले आप देखा होगा कि सम ऑफ द सजेशंस टू आवर डियर स्टूडेंट्स कि हर 2 या 3 साल में देयर आर द कॉर्पोरेट का ट्रांजिशन होते रहता है। नए नए जो टेक्नोलॉजीज है वो आती रहती है, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कंपनीज है, वो उसको अडॉप्ट करते रहता है, बिकॉज डेफिनेटली वो अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे उस चीज को, तो दे विल गेट वैनिश, राइट? सो दे नीड टू अडॉप्ट द थिंग्स। उनको अडॉप्ट करना है, दैट मीन्स कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, दे आल्सो नीड टू अडॉप्ट दोज जो भी टेक्नोलॉजी है उसको, राइट? सो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एक अडेप्टेबिलिटी जो रहती है हमारी, अडेप्टेशन का जो पावर है उनका, वो बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई सीख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। नो, ऐसा मत करो कि यू शुड लाइक लर्न न्यू 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 थिंग्स। कोई नया सॉफ्टवेयर सीख लिया, कोई नई स्किल सीख ली, कम्युनिकेशन कर लिया, एंड डू नॉट हेजिटेट। अभी फिलहाल में तुम ग्रेजुएशन में हो, इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर इट इज, दिस इज द प्लेटफॉर्म टू ग्रो। मैंने ग्रेजुएशन के जो समय है उस टाइम पे उतना जो नहीं सीख पाया था, मेरे को बाद में वो चीजें सीखनी पड़ी विद इन दिस 2 years। तो अगेन वो 2 years का एक गैप हो जाता है तुम्हारे जो करियर में, जो एक जो प्रमोशंस या फिर कुछ भी बोलो, या फिर एक इम्पैक्ट, या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स तुम जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। तो इट इज द बेस्ट टाइम। अभी फिलहाल में तुम कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा लो, लर्न करो, नए नए सॉफ्टवेयर लर्न करो। अभी जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जनरेटिव एआई आ रहा है, उसके बारे में बेसिक आइडिया पता रहना चाहिए। वो हेल्थ केयर में कैसे इंपॉर्टेंट है, वो फार्मा वाले उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे यूज कर रही है, ये सब चीजें हम तुमको पता रहनी चाहिए। तो ये अगर तुम अपडेटेड रहोगे, मैं पहले से ये बोलता हूँ कि इफ यू आर लाइक अपडेटेड एंड यू आर लर्निंग एंड लर्निंग, लर्निंग इज एन लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तुमको लर्न करना ही होगा इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट। डेफिनेटली यू नीड टू बी लाइक, यू नीड टू लर्न। तो ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसको लर्न करते रहो, सीखते रहो, एंड डेफिनेटली यू कांट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल, राइट? सो वही है। Yeah, very well said, Pawan. Like, no one can stop you, but only you yourself can stop uh, yourself from growing. So that's the thing कि अभी जैसे न्यू जो एरा आ रहा है वो एआई का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, तो सारी कंपनीज जो है वो अडाप्ट कर रही है कि हम कैसे एआई को यूज करें।
so that we can grow our company. If I want to talk about my profile also, like as I am working as a business analyst for an IT company, मैं business analyst as a work कर रही हूँ. तो being an IT company, they expect कि जो even if I am from the pharma background, मैं भले ही pharma से हूँ, but they will expect कि मैं languages जानती हूँ. Languages in the sense कि जो computer languages है वो. Then Yes. they expect मुझे SQL आता हो, then Power BI जो एक tool है वो आता हो, then Jira and all many things are there. So they expect those things and these things you can learn after also. But जो basic चीज है, जो basic आपकी personality बनाएंगी, जो as a fresher expect किया जाता है आपसे, वो है कि at least आपका communication, आपका body language, आप अपने आप को कैसे represent करते हो, that is very important. और आप जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो, उस फील्ड का एटलीस्ट थोड़ा टच आपके रेज्यूमे में दिखना चाहिए. ओके, जैसे मैं बिजनेस एनालिस्ट बनना चाह रही थी, तो मेरे पास में मैंने जो एक वर्कशॉप अटेंड किया था, दैट वाज रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो कहीं ना कहीं था जिस वजह से मुझे हेल्प मिली. ओके, जैसे मेडिकल राइटिंग में पवन है, तो अगर उनके रेज्यूमे में ये चीज है कि उनके पब्लिकेशंस है या फिर उन्होंने कहीं पे पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है, तो दैट विल सर्टेनली हेल्प हिम. ओके, तो जो भी जॉब में आप जाना चाहते हो, इवन इफ यू वांट टू गो फॉर R&D इन फार्मा सेक्टर, तो आपके रेज्यूमे में वो दिखना चाहिए कि आपने कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वो चीज आपके रेज्यूमे में बिल्कुल दिखनी चाहिए, सो दैट दे कैन कंसिडर कि हाँ, इस बंदे को इंटरेस्ट है और इस चीज को ये कर सकता है. Okay, so that is the main thing that I wanted to tell you guys. And thank you so much, Pawan, for your valuable time. आपने बहुत अच्छे से introduction दिया. I literally feel कि जब हम लोग कॉलेज में थे, अगर हमको ऐसा कुछ मिल जाता गाइडेंस कहीं से, तो शायद हम लोग भी थोड़ा, अभी भी हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट और भी अच्छे से कर सकते थे. जो कंफ्यूजन में और भी जो हम अच्छा लोग, लगता है। हाँ, जो टाइम हम लोग कंफ्यूजन में और स्ट्रेस आउट करके मतलब स्पेंड करते थे, तो वो काफी अच्छा कभी हो सकता था. बट नो वरीज, हम लोगों को नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए लाने की पूरी कोशिश की है. एंड आई रियली होप कि जो आपका, जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि हमने काफी अच्छे से बताया है, पवन ने बहुत अच्छे से बताया है, काफी अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं. सो या पवन, ऑन द बिहाफ ऑफ माय ऑल द सब्सक्राइबर्स, माय ऑल द फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट फॉर लाइक कि आपने इतना टाइम निकाला, अपना पूरा जो अपने जो नॉलेज इतने दिन में गैदर किया है, वो पूरा इतने अच्छे से स्टूडेंट को दे दिया. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड इफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको फिर से हमारे चैनल पे आना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए. एंड दैट्स डेफिनेटली। नॉट एन रिक्वेस्ट, आई एम टेलिंग यू एज अ फ्रेंड कि आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम यू. या सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू. आप कुछ और बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? नो नो डेफिनेटली, आई मीन कीप हसलिंग गाइस, एंड फार्मा बिल्कुल भी एक डिग्रेडिंग मार्केट नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब इन द कॉर्पोरेट फार्मा के लिए. ऐसा नहीं है या कि फार्मा ले लिया तो यार अब क्या करेंगे, इसका तो कुछ चल नहीं रहा है. आईटी वाले देखो 15 लाख पे पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है. ऑलरेडी एक बंदा 5 लाख से 14 लाख पे जा सकता है. ये आईटी वाला सीन नहीं है, फार्मा वाला ही सीन है. तो a pharma graduate can also go like earn like an IT guy. So definitely you are not in the wrong field, and you have to upgrade yourself and keep updating and keep hustling. And फिर तो आरती मैम तो है, वो आपको हमेशा गाइड करते ही रहेंगे. एंड डेफिनेटली आई एम आल्सो देयर इफ रिक्वायर्ड. यस. यस यस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन बुक करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप सेशन बुक कर सकते हो और वहां से डिटेल्स भी देख सकते हो. या ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू पवन फॉर बीइंग हियर. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हियर ओनली. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. थैंक यू सो मच. बाय.